next contact force that we are going to discuss is tension force. Tension force basically is force exerted by a rope or a cable or a chain, okay, on the bodies to which they are connected. If suppose I hang a block with a rope from a ceiling, okay, from a support, suppose, so generally if we leave this block somewhere in air, it will fall down. But what is this string doing? It is giving support to this block by applying an upward force. Okay, obviously mg force will be acting in the downward direction, that we call weight, or we understand this as the gravitational force by earth on any body. Okay, and it does not fall down. Why? Because there is a force applied by this rope. In which direction? In the upward direction. Okay, so that force which is applied by a rope or a chain or I say a cable, then that force is called tension. Okay, now tension basically is a pulling force. T is a pulling force. Okay, what I mean by saying this is that ropes cannot push anybody. Okay, they can only pull. So that is why tension is a pulling force. Whenever a string is connected with a body, at that point tension force is pulling it. Okay, suppose let us take a very simple example. This is block A and I connect another block B. Okay, so this string is pulling these two bodies. If I ask B, okay, and B suppose is moving in this direction with some velocity V, then B is being pulled by tension force in the backward direction. Wherever there is a point where string is connected and string is taut, okay, it is not slacked. This is, if the string is like this, it is called slacked string. So if the string is taut, then the string applies a force which is called tension and it is always away from the body. Similarly, if I ask you, in which direction will this rope pull block A? Okay, so aap bologe, you will say that A block is being pulled by this rope in the rightward direction. Okay, I can say that this force is T tension and this one is also T tension. Okay, so in this diagram you see that a crane is actually trying to lift this ball. Okay, this ball will generally fall down due to effect of gravitational force by earth, that is its weight, but it does not fall down. Why? Because it is connected with a string and this string is applying tension force in the upward direction at the point where it is connected with the body. At this point it is pulling the body in the upward direction. Tension actually applies along the string always. Suppose there is a block, okay, and it is kept on a surface, a rigid surface. Suppose it has some weight and you try to pull this block in this direction with a string. Okay, then the tension force on this block will be like this at the point where the string is connected and in the direction along the string. So tension will act in this direction. Okay, we have studied that normal force by the surface, by the contact surface, always acts perpendicular to the surface. So normal will act like this at the bottom surface in the upward direction and mg will act in the downward direction. That is the weight force or gravitational force by earth, which in other words we can say as gravity. Okay, so tension always acts along the string. If this string is like this, okay, so the tension force will be acting in this direction only. Chalo, the tension force is directed over the length of the wire and pulls equally on the bodies at the ends.
that is what I just said. Suppose there is a block, this is block A and there is a block B, and these two, both the blocks are then hanging from a rigid support at the top. Okay, there are two strings. Okay, if I draw forces on this block A, okay, there are two strings connected with this block. How many strings are connected? There are two strings connected with this block. Suppose this string we call as string 1 and this string we call string number 2. Then what will we say? That the tensions will be different in these two strings. Okay, always whenever the string changes, the tension is supposed to change. Okay, so obviously the string 1 will pull the block A at this point. So tension force T1, that is the force of the string 1, will act in the upward direction on this block A, right? उसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, इसी की वजह से ये ब्लॉक्स नीचे की तरफ नहीं गिर रहे हैं, राइट? इसके ऊपर एक खुद का mg भी होगा इसका. सपोज इसके लिए मैंने लिखा कि इसका जो mg है ma into g है, ma इसका मास ले लेते हैं, ठीक है? सिमिलरली इसके साथ एक और स्ट्रिंग कनेक्टेड है बेटा, दिस इज स्ट्रिंग नंबर 2, तो वो भी जहां से कनेक्टेड होगी वो उसको खींचेगी. सो एक्चुअली ब्लॉक A is being pulled by this string in the downward direction with tension T2, right? तो इस ब्लॉक से क्योंकि दो स्ट्रिंग्स कनेक्टेड थी तो दोनों ने अपनी अपनी तरफ पुल किया. लाइक स्ट्रिंग 1 is pulling block A in the upward direction with force T1, right? सिमिलरली अगर ब्लॉक A को स्ट्रिंग नंबर 2 से कितना फोर्स लग रहा है ये पूछें तो वी विल से दैट टेंशन T2 इज एक्टिंग ड्यू टू स्ट्रिंग नंबर 2. अच्छा, वैसे अगर ब्लॉक B की बात करूं तो बेटा B इज ऑल्सो एट रेस्ट, रुका हुआ है ये, बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय दिस स्ट्रिंग. तो ये स्ट्रिंग जरूर इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, अदरवाइज दिस ब्लॉक वुड हैव फॉलन डाउन. मान लेते हैं कि इसका जो mg है वो नीचे की तरफ लग रहा है बच्चे, mbg इसका मास हम ले लेते हैं सपोज mb, तो इस पे mbg नीचे है इसका वेट, तो इसको कौन रोक रहा है नीचे गिरने से? which force is stopping it from falling down? तो आप बोलोगे सर दिस स्ट्रिंग 2, ठीक है, हाउ? तो जहां पे कॉन्टैक्ट है बेटा वहां पे स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा? टेंशन T2 and in the upward direction. तो this statement is clear now कि tension force is directed over the length. लेंथ के along ही डायरेक्ट होता है. जैसे इस स्ट्रिंग की बात करूं तो लेंथ उधर लेंथ के डायरेक्शन में ही लगा. इसके लिए इस पॉइंट पे बात करूं, देखो नीचे की तरफ लगा, स्ट्रिंग के along ही है. इसके लिए भी बात करूं तो स्ट्रिंग के along ही है. So tension force always acts along the string, हमेशा स्ट्रिंग की लेंथ के along ही लगता है, and pulls equally on the bodies at the ends. ये अच्छी बात है. देखिए कि अगर ये बात करूं स्ट्रिंग 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, इधर से भी ये पुल करेगा T2 फोर्स से, इधर से भी पुल करेगा T2 फोर्स से. These two tensions are equal in magnitude and opposite in direction. देखो pulls equally on the bodies at the ends. अगर एक स्ट्रिंग के एंड्स पे दो बॉडीज कनेक्टेड है बेटा तो दोनों ही साइड में वो स्ट्रिंग क्या करती है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाती है. एक सिंपल एग्जांपल और लेता हूं मैं. सपोज करिए बेटे कि एक ब्लॉक हो गया A, दूसरा ब्लॉक है यहां पे बच्चे B, और इसको हम लोग किसी फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स से खींचने की कोशिश कर रहे हैं. अभी तो B भाग जाएगा, बट व्हाट वी डू इज वी वांट दैट A शुड आल्सो गो विथ ब्लॉक B के साथ ही चला जाए, ऐसा हम चाहते हैं. तो मैं क्या करा, इनके बीच में एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी. आई हैव कनेक्टेड A एंड B विथ अ स्ट्रिंग. सो व्हाट विल हैपन, B विल सी दैट स्ट्रिंग इज पुलिंग इट बैकवर्ड्स विथ सम टेंशन T. यहां पे ऐसे टेंशन पीछे की तरफ लगेगा, वो उसको पुल करेगी पीछे की तरफ. ये B ब्लॉक के लिए हो गया. और उस पर आगे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है बेटा? F लग रहा है. अगर और फोर्सेस की बात करूं तो इस पे mg होगा, मान लेते हैं ये mbg है, ठीक. सिमिलरली ये नीचे की तरफ फॉल क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज अ नॉर्मल फोर्स इज बीइंग एक्टेड बाय द सरफेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो मेन बात हो गई कि हॉरिजॉन्टल में मोशन पॉसिबल है. सिमिलरली अगर मैं A की बात करूं
तो ए पे नीचे की तरफ इसका क्या हो जाएगा, MAG, ठीक है। तो इसको नीचे गिरने से कौन रोक रहा होगा, एक फोर्स है नॉर्मल, और इसको आगे कौन ले जा रहा है, यू विल से टेंशन। तो फिर से यू सी कि एट द एंड्स अ स्ट्रिंग इज पुलिंग द ब्लॉक्स विथ इक्वल फोर्स, ठीक है। तो ये क्या हमेशा वैलिड होगा कि एक स्ट्रिंग जो है हमेशा इक्वल फोर्स लगाएगी एट द एंड्स? यस, इन द केस व्हेन द स्ट्रिंग इज आइडियल। अगर मैं बात करूं बेटा आइडियल स्ट्रिंग की, आइडियल स्ट्रिंग, व्हाट इज दैट, लेट मी एक्सप्लेन। एक आइडियल स्ट्रिंग क्या हो जाता है, मासलेस, ठीक है। स्ट्रिंग का जब मास नहीं होगा, व्हेन इट इज मासलेस, एंड सेकेंड इज इट इज अनस्ट्रेचेबल। ठीक है, वो स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए, लाइक अ रबर बैंड, इट शुड नॉट स्ट्रेच, इट्स लेंथ शुड बी कांस्टेंट। लेंथ क्या होना चाहिए उसका, कांस्टेंट होता है जब, ठीक है। अगर आपने 1 मीटर का रोप लाया मार्केट से एंड यू कैन स्ट्रेच इट to 1.5 meters or 1.2 meters, then that string is not said to be ideal string. अगर आप एक मार्केट से स्ट्रिंग लाते हैं एंड इफ यू ट्राई टू स्ट्रेच इट, अगर आप उसको खींचने की कोशिश करते हो और उसकी लेंथ चेंज नहीं होती, तब हम उसे कौन सी कैटेगरी में डालते हैं बेटा, आइडियल स्ट्रिंग की कैटेगरी में लाते हैं, ठीक है। उसके पास बहुत ज्यादा मास नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मासलेस, बिल्कुल लाइट रोप होनी चाहिए। मासलेस का मतलब क्या है ये, इट शुड बी लाइट। इन अगर ये दोनों जो हमारी प्रॉपर्टीज है ये सैटिस्फाई हो रही है, देन वी से दैट द स्ट्रिंग इज आइडियल। एंड इन दिस केस टेंशन इज सेम एट द एंड्स। टेंशन क्या रहता है सब जगह, इज सेम। टेंशन सब जगह क्या रहता है, सेम रहता है एट द बोथ एंड्स। अदरवाइज बेटा वो टेंशन चेंज हो सकता है, एंड वी विल टॉक अबाउट इन द लेटर स्लाइड्स। इस पे बाद में बात करते हैं हम लोग। फिलहाल आपको समझ में आ रहा होगा कि टेंशन हमेशा खींच सकता है, इट कैन नॉट पुश, इट ओनली कैन पुल। जैसे मैं बोलूं कि इफ यू हैव टाइड अ स्ट्रिंग टू दिस वॉल, और अगर आप खींच तो सकते हो, कैन यू पुश एनीवन विद अ स्ट्रिंग? आप किसी के हाथ को बांध दीजिए स्ट्रिंग से और फिर दूर आकर के उससे धक्का देने की कोशिश करिए, ट्राई टू पुश इट, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, बट आप पुश नहीं कर पाओगे उसको, राइट। फॉर दैट यू विल रिक्वायर अ रॉड। रॉड लगा करके आप पुश कर सकते हो। रोप से या धागे से यू कैन नॉट पुश एनीबॉडी, यू कैन ओनली पुल। रॉड का क्या फायदा हो जाएगा वहां पर कि उससे आप पुश भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पे मैं बात करूं कि खींच तो सकते हैं, अगर ये बेटा क्या है, एक रोप होता तो रोप से ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। This person is stretching this, trying to stretch this rope in this direction. तो इन्होंने इधर टेंशन फोर्स लगाया, तो स्ट्रिंग ने इन पे उधर फोर्स लगाया हुआ होगा, इसलिए पीछे की तरफ नहीं गिर रहे। Similarly, he is applying tension force on the rope and tension is applying the same, string is applying same force in the backward direction. तो यहाँ पर स्ट्रिंग में हर जगह पर टेंशन है, T टेंशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रोप में तो ऐसा पॉसिबल है, खींच सकते हो, ठीक है। अगर ये दोनों पुश करना शुरू कर दे अभी, इफ दे स्टार्ट पुशिंग द रोप, तो रोप कैसी हो जाएगी बेटा, पुश करते ही रोप कैसी हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी, और उसका फोर्स क्या बन जाएगा, 0। तो वैसा रोप में पॉसिबल नहीं है, रोप कैन नॉट पुश, ठीक है। ये डायग्राम है, तो देखिए ये क्या कहता है कि टेंशन फोर्स इज डायरेक्टेड ओवर द लेंथ ऑफ द वायर एंड पुल्स इक्वली। रिमेंबर दिस कि टेंशन कैन ओनली पुल, rope can only pull, a thread can only pull, a chain can only pull, it cannot push, ठीक है। पुश करने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, एक रॉड लाना पड़ सकता है, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई अ पुशिंग फोर्स विथ टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस, मैंने ये बात अभी अभी बोली, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, देन द टेंशन विल बी सेम, ठीक है। अगर स्ट्रिंग कैसा होता है बच्चे, इट इज मासलेस, देन द टेंशन विल बी सेम अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक। हर जगह पर टेंशन जहां पे भी स्ट्रिंग कनेक्टेड होगी वो सेम रहेगा, बट अदरवाइज, ठीक है। बट इफ द स्ट्रिंग हैज सम मास, अगर स्ट्रिंग के पास थोड़ा सा भी मास आ जाता है,
अगर स्ट्रिंग भी भारी बन जाती है तो फिर वो अपना वेट भी सपोर्ट कर सकती है, जिसकी वजह से उसके एंड्स पे फोर्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल, कभी इक्वल हो जाएगा कभी इक्वल नहीं होगा। वी विल सी दोज कंडीशंस लेटर ऑन, ठीक है। सो आई विल रिपीट, अगर स्ट्रिंग के पास कोई मास है, ठीक है, if the string have some mass, then the tension will continuously change along the string, length के along उसका जो टेंशन है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो अगर यहां पे बात करूं, अगर ये मासलेस है बेटा, if this is massless, ठीक है, तो आप देखते हो कि सपोर्ट को, जो ऊपर टॉप सपोर्ट है बेटा, वहां पे कनेक्शन के बाद ये क्या करता है, टेंशन T ऊपर से लगाता है, ठीक है। इस ब्लॉक को अगर एनालाइज करें, M ब्लॉक है, तो यहां पे भी जहां स्ट्रिंग कनेक्टेड है ये कितना ही फोर्स लगाता है, एग्जैक्टली सेम टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियसली यहां पे एक mg भी है जिसकी वजह से स्ट्रिंग टाइट है, राइट। तो टेंशन यहां पे क्या देख रहे हो आप कि इस एंड पे, ऊपर वाले एंड पे और नीचे वाले एंड पे बेटा क्या है, सेम है। लेकिन अगर यही मास वाली रोप आ जाती, जैसे कि मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको थोड़ा सा, सपोज करो बेटा ये एक बहुत ही थिक रोप है ऐसी, ठीक, और इसके नीचे बेटा हमने यहां पे एक ब्लॉक M क्या किया है, हैंग किया है। तो इस जगह पे टेंशन क्या होगा, T1 ले लो, T1 ले लो, और यहां पे अलग टेंशन होगा, उसको T2 बोलना पड़ेगा। अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं तो T3 बोलना पड़ेगा। दैट इज, इसके पूरे लेंथ में जो टेंशन होगा वो इसके मास पर डिपेंड करेगा। अगर इसका मास सपोज करो ms है, तो उसके हिसाब से फिर इस पर टेंशन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है।